Hello everyone, a very warm welcome to you all in my class, in the class of accountancy, class 11th, where we were dealing with the concept and the accounting treatment related to the very important chapter of term 2, which is incomplete record. Dealing that, we will try to revise all the concept which has been discussed earlier before you, and today we will deal the concept of accounting treatment so that you have a complete grasp and grip on the topic of incomplete record, and the financial statement of incomplete record could be more clear, and in this chapter you will be able to gain more and more marks, or you can say maximum marks, so that your percentage and merit could be increased as much as possible. So students, let us begin and let's start the topic of concept related to the incomplete record. So first of all, the incomplete record, the financial statement of incomplete record. So let us start. When we talk about the financial statement of incomplete record, or directly we will talk about the incomplete record. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हमने पहले भी बातें की थी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कंप्लीट तो होता है लेकिन नॉट एज पर द डबल एंट्री सिस्टम। हम डबल एंट्री सिस्टम की बेसिस पे इसकी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। यानी अगर हम कहें कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है एक ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट है, एक ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट है जो कि कंप्लीट नहीं होती है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इन implementation of double entry system. Okay, so as a conclusion we could say that the double entry system is a system of recording the transaction wherein which all the transactions are categorized under two categories, and with the help of that we could identify that all the debit transactions are equal to the credit transactions, and ultimately on the same concept we will deal the incomplete record related transaction, and we could say that books of account which are not prepared as per the rule of double entry system, then it is called incomplete records. And ultimately a very important thing is there, that only some selected portions are recorded on the basis of such rules, and ultimately
which are preferred by the entrepreneur who is making books of account. So, as a conclusion, we could say that the incomplete records consist of two words, that is incomplete and record, where the word incomplete make a clear sense that something which is not complete. But when we talk about record, it is dealing with the books of account or the written document which contains the informations related to something, and integrating both, we could say that the books of account which are not prepared on the basis of the rule of double entry system are called incomplete record, because such records are not complete due to the non completion of the accounting process. हम ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट केवल इसलिए नहीं हो पाया है, उस प्रोसेस की कंप्लीशन केवल इसलिए नहीं हो पाई है कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है. नॉट completion of the steps of अकाउंटिंग के स्टेप्स जो है फुलफिल नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए हैं. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं. I hope the concept is very much clear to you. I hope the entire concept related to the incomplete record is clear to you. Now we will move to the second question, that is why the concept or the records are treated as incomplete records. Means we will deal about the features of incomplete record. Here we will deal the reasons why a record or a books of account are treated as incomplete record and will not able to give all the information related to which the interested party are not able to satisfy themselves and avail the necessary information from that. So let us talk about the features of incomplete records. So first and a very prominent feature, that is use of, or you can say the preparation of some few personal and real अकाउंट. कुछ रियल और कुछ पर्सनल अकाउंट की हेल्प से इसे प्रिपेयर किया जाता है. मीन्स इट इज अ implied sense as there is no use or the preparation of nominal account. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो पर्सनल अकाउंट या जो रियल अकाउंट होते हैं वो एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल हमारे रिकॉर्डिंग के काम से रिलेटेड होता है उसकी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे होते हैं. यानी अगर हमारी सपोज हमारी शॉप है और हम उस शॉप में अल्टीमेटली केवल सपोज कैश अकाउंट बनाना चाहते हैं या पार्ट ऑफ कैश अकाउंट स्टॉक अकाउंट बनाना चाहते हैं और अदर किसी रियल अकाउंट के आइटम को
नहीं करना चाहते। एज वेल एज पर्सनल अकाउंट में हमने राम और श्याम दो पार्टीज को कंसीडर किया, ठीक है, और इस केवल इन्हीं से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की, तो भी हम श्याम अकाउंट, तो ऐसी कंडीशन में ये जो सिलेक्शन है वो हर इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है। यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन श्याम और राम का अकाउंट फर्स्ट बना रही है तो हो सकता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है मोहन और सोहन का अकाउंट बनाए, या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको वो नेसेसरी समझती है, जिसको वो इम्पॉर्टेंट समझती है, जिसके साथ उसके रेगुलर ट्रांजेक्शन्स हैं, उसकी प्रिपरेशन करेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो बुक्स ऑफ अकाउंट होगी उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, मीन्स लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, और ऐसी कंडीशन अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं दे विल नॉट ट्रस्ट वर्दी, उनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ अगर हम नॉमिनल अकाउंट की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो वी कुड नॉट एबल टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। As the preparation of final account is not possible। अगर ये पॉसिबल नहीं होगा, as I said it will not be possible, so we will not able to calculate the profit and loss due to absence of nominal account information। I hope the concept is very much clear to you कि अल्टीमेटली जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती हैं उनमें जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट एब्सेंट होता है, वो नॉमिनल अकाउंट नहीं पाया जाता है, एंड दैट इज द रीजन वी कुड नॉट प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट इन द केस ऑफ द कंपनी विच इज प्रिपेयरिंग द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे इन जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का टेंटेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यानी एज आई सेड कि अगर हम फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो वी विल नॉट calculate the profit and loss as well as financial position of the firm, and due to which we will not able to satisfy the basic objective of accounting, and in order to calculate the profit and loss and in order to ascertain the financial position, we identify the tentative solution of this problem, which is conversion of the incomplete record into complete records related information वो इंफॉर्मेशन जो कंप्लीट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे जो है प्रिपेयर की जाती है उसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद जो है उसे प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एसर्टेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सो लेट अस नो हाउ एंड व्हाई दिस कन्वर्जन इज नेसेसरी। सो द conversion of
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का कन्वर्जन क्यों होता है? सबसे पहले हम ये जान लें ये कन्वर्जन करते किस लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मेड फॉर ascertaining the basic objective or you can say basic goal of the accounting। अकाउंटिंग की जो बेसिक गोल है उन बेसिक गोल्स को अकम्प्लिश करना, दैट इज द मेजर रीजन टू कन्वर्ट द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इनटू कंप्लीट रिकॉर्ड्स। अब हम बात करें कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग के वो क्या है। वो ऑब्जेक्टिव है हमारे दैट इज, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन की, तो नॉर्मल सिचुएशन में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी कैलकुलेशन हम किससे करते हैं? उसकी कैलकुलेशन यूजुअली हम करते हैं फ्रॉम द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इट इज नॉट पॉसिबल एज इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नॉमिनल अकाउंट का कंटेंट होता ही नहीं है। सो ऐसी कंडीशन में हम एक्चुअली दूसरे स्टेप पे जाते हैं, दूसरे तरीके पे जाते हैं। द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की हेल्प से अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में we could say that calculation with the help of capital fund। कैपिटल फंड की हेल्प से कैलकुलेशन करते हैं। कैपिटल फंड, और इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट फॉर्मूला इज, जो नॉर्मल बैलेंस शीट हम बनाते थे उसमें हम ओपनिंग कैपिटल को नेट प्रॉफिट के साथ या प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस के साथ ऐड करते थे और माइनस करते थे ड्राइंग से। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्लोजिंग कैपिटल आता है। कभी कभी इसी में अगर फर्दर कैपिटल आइडेंटिफाई है तो हम इसमें क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस फर्दर एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग will give the value of closing capital। ठीक है। अब अगर हम क्लोजिंग कैपिटल की बात करें, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन होगी उसमें हम प्रॉफिट को छोड़ करके इक्वल टू अपोजिट साइड जितनी भी चीज़ें हैं उसको क्लोजिंग कैपिटल के साइड ट्रांसफर कर देंगे और हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज द
क्लोजिंग कैपिटल और इसमें से हम लेस कर देते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग कैपिटल and the value of further capital, or we can say the additional capital. और इसके बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू में हम अपने एडिशनल कैपिटल को एक्चुअली ड्राइंग को ऐड कर देते हैं. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ओपनिंग कैपिटल, or we can say the value of profit. The value of profit and loss. अब यहाँ पर देखिए कंसिडरेबल चीज़ ये है कि जो भी क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू है उसमें हम ओपनिंग कैपिटल और फर्दर कैपिटल को ऐड करने के बाद ड्राइंग को लेस करेंगे और बैलेंसिंग फिगर में जो फाइनल अमाउंट आएगी वही फाइनल अमाउंट अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट या अगर नेगेटिव है तो लॉस होगी. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू. और अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर किया जाए तो इस प्रॉफिट एंड लॉस के कंपैरिजन से हम जानेंगे कि यही जो फॉर्मेट है का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के केस में ये हमारा फॉर्मेट हो जाता है ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसकी हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं. और इसके बाद जो बैलेंस शीट बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बेसिस पे. उसके फॉर्मेट की हम लोग डिस्कशन करेंगे. लेट अस सी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. As you can see here that this is the format of statement of affair, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनाया जाएगा इस बात के लिए हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट डिस्कशन करना ज़रूरी समझा, ताकि आगे जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट की बात करें तो आप इसके कैलकुलेशन और इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ. जैसा मैंने कहा था कि जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है that is almost equal to the balance sheet which are usually prepared in the corporate organization. तो यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी बैलेंस शीट उसी तरीके से प्रिपेयर की जाएगी. जितने भी असेट्स होंगे वो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में और जितनी भी लायबिलिटीज होंगी वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगी. और ऑर्डर भी सेम होगा. अगर हम करंट असेट्स को पहले रिकॉर्ड करते हैं तो इधर भी लाइबिलिटी साइड में भी हम करंट लाइबिलिटीज़ को पहले रिकॉर्ड करेंगे और इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में बात कंप्लीट की जाएगी. और इसके अलावा हम जब टोटल असेट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, एज यू कैन सी हेयर दैट द कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर tangible assets. These all the tangible एंड फिक्स असेट्स. तो ऐसी कंडीशन में हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं. इसका जो सम टोटल आएगा हम वो अपनी टोटल करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी के सम टोटल से घटा देंगे. ठीक है. तो जो डिफरेंशियल फिगर आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वही बैलेंसिंग फिगर हमारा कैपिटल होगा. और इस कैपिटल को हम अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ओपनिंग कैपिटल के रूप में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि हम जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को हम बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाते हैं. ठीक है. और अगर बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट को अगर हमने पढ़ रखा है, अगर बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम कॉर्पोरेट अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे. और
जिस ऑर्डर में जिस तरीके से वहाँ बैलेंस शीट की प्रिपरेशन की जाती थी उसी ऑर्डर में सारे करेंट असेट्स और करेंट लाइबिल नॉन करेंट असेट्स यानी कि टेंजिबल या फिक्स असेट्स की बात करने के बाद जितनी भी करेंट लाइबिलिटीज़ हैं या करेंट नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हैं आउटसाइड पार्टीज़ के लिए ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें बैलेंसिंग फिगर में इनसाइड पार्टी के लिए जो लाइबिलिटी है एज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल वो आइडेंटिफाई हो जाएगा एज इन द फॉर्म ऑफ बैलेंसिंग फिगर। और साथ ही साथ ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा कैपिटल की वैल्यू होगी वो नॉन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू के रूप में काम करेगा। जहां हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ रखा है कि द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज बेस्ड ऑन द ओपनिंग कैपिटल एंड द फर्दर कैपिटल एंड एनालाइजिंग विद द क्लोजिंग कैपिटल में हम ओपनिंग कैपिटल और फर्दर कैपिटल को लेस करके ड्राइंग को ऐड करते हैं तो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू आती है। तो वहाँ पे ओपनिंग कैपिटल अगर हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में नहीं आइडेंटिफाई हो पाएगा तो हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी एसेंशियल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्योंकि इसके बिना हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव, इन सभी की जो कंप्लीशन है वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। होप द कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर and the format related to that is very much clear to you, and in the next class we will deal the same concept related to some practical question uh, in order to make the clear sense of incomplete record to you. Till then, take care and goodbye.